Yes, in last lecture we had discussed the limitation of the Friedel-Crafts alkylation. In that we had discussed the limitation of the Friedel-Crafts alkylation. What happen when we expect the benzene is treated with the methyl chloride, ethyl chloride, propyl chloride, or whatever the alkyl chloride in presence of Lewis acid. So expected product is that the mono substituted benzene. है ना? But what happened when we carried out the same reaction practically? What happened? The poly substitution is takes place. What happened? The poly substitution is takes place, means instead of substitution of the one of the hydrogen atom from the benzene, the number of the hydrogen atoms substituted by the alkyl group and formation of a resulting polysubstituted benzene, means we theoretically expect that if treat the benzene with the methyl chloride in presence of aluminium chloride, the formation of a toluene. But what happened? The toluene further undergo the disubstitution, trisubstitution, and formation of a 1 2 or 1 4 or 1 that is 1 4 dimethyl benzene, है ना? That is formation of a polysubstituted benzene. This is due to the activation effect by the methyl group. What happen when a benzene is treated with the methyl chloride in presence of aluminium chloride, resulting in the formation of a toluene? But this toluene is having the methyl group that show the activating effect, means that release the electron towards the benzene ring. That's why the electron density on a benzene ring is increases. Indirectly, the electrophilic aromatic substitution rate of reaction is also increases, because the electron density on a benzene ring is increases. So it motivate or it promote for the further electrophilic aromatic substitution. That's why the reaction can't stop at a mono substitution but undergo the further disubstitution, means the toluene further undergo the disubstitution or tri-substitution, means the polysubstitution product is a result. That's why this one is the limitation. How to overcome this problem? Yes. से रिपीट Yes. कीजिए ना क्वेश्चन. As we discuss the Friedel-Crafts alkylation having the limitation of the polyalkylation, means when we expect the toluene, when we treat the benzene plus methyl chloride in presence of aluminium chloride, so what will be the product? Methyl chloride. But we found that there is a formation of a poly substituted benzene, means methyl not substituted by one of the hydrogen atom but 2 or 3 hydrogen of a benzene replaced by the methyl group. That's give the poly substituted benzene. So how to overcome this problem? Or similar example, just take the example of the aniline. Aniline undergo the any Friedel aromatic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. Yes, just we have to blunt the activity of a corresponding benzene ring, है ना? कोई भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज कर सकते हैं ना. दिस इज द रिजल्ट और सॉल्यूशन, है ना? तो और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था if the benzene is the disubstituted, if the benzene that containing the two different group that attached to the benzene ring, so if it is further undergo the substitution, so next the third group attacking to which of the position, वो भी डिस्कस किया था हमने, है ना? यस सर. कभी देखो दो ग्रुप रहते हैं और दोनों भी अलग अलग रहते हैं. वन इज द ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर एंड सेकंड वन इज द मेटा डायरेक्टर. तो वो क्या होता है, उसको को सिनर्जिटिक इफेक्ट में ये मिलता है. उसको क्या बोलते हैं? उसको दैट इज अ
reinforce, both the group reinforce to the particular one direction. Just take the example of a para-nitrotoluene. Para-nitrotoluene में if the para-nitrotoluene undergo the further electrophilic substitution reaction, है ना, तो in that the para-nitrotoluene, the methyl group direct the next group on a ortho and para position. So there are the two ortho position and one para position, but the para position is blocked by the nitro group, है ना, तो वहां पे चांस ही नहीं बनता है कुछ. अगेन द सेकंड ग्रुप दैट डायरेक्ट द फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑन अ मेटा डायरेक्शन. तो इनडायरेक्टली जो है ना मेटा पोजीशन है नाइट्रो की, वही पोजीशन अर्थो की है मिथिल ग्रुप की. तो दोनों भी ग्रुप क्या करते हैं, री इन्फोर्स द नेक्स्ट कमिंग ग्रुप ऑन अ पर्टिकुलर सेम कार्बन एटम. तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. है ना. नेक्स्ट व्हेन अ टू ग्रुप ऑफ द सेम एक्टिवेटर्स, जैसा देखो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है वॉट एवर द गिवन कंपाउंड, है ना. तो पैरा, दोनों की भी पैरा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है. दोनों की भी पैरा पोजीशन क्या है, ब्लॉक है ना. जो नाइट्रोजन के अपोजिट में दैट इज अ पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द मिथिल ग्रुप, और मिथिल की पैरा पोजीशन जस्ट ब्लॉक बाय द अमाइड ग्रुप, है ना. तो दोनों की भी अर्थो पोजीशन ओपन है, बट इन दैट केस the activator that is more stronger or that release the benzene electron towards the benzene ring is more, that decide the position of a next coming electrophile. So if we compare the electron releasing ability of amide group compared with the methyl group, so we found that the amide group, in that the nitrogen atom release the electron towards the benzene ring is more compared to that of the methyl group, because the nitrogen atom that having the non-bonded pair of electron release the electron towards the benzene ring by resonance, और methyl group क्या करता है, release the electron towards the benzene by hyperconjugation. But when we compare the stability given by the resonance and hyperconjugation, we found that resonance is more predominant or contribute compared to that of the hyperconjugation. That's why the NHCOCH3 group that decide the position of a next coming electrophile, है ना. The third substitution क्या रहता है, no substitution occur between two substituents because of the crowding. What happen, जब दो substituent है benzene ring पे and they are the not adjacent to each other but they are the alternate with each other, means one का carbon atom is just blank और second alternate है ना. तो in that case no substituent just occupy in between a two substituent due to the steric hindrance, due to the overcrowding effect. जैसा एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है मिथाइल मेटाजाइलिन. मेटाजाइलिन में क्या है, देखो मेटाजाइलिन में देखो दिस मिथिल ग्रुप हैविंग द अर्थो और पैरा पोजीशन पे है, और यहाँ पर भी क्या है, ये इसका भी दिस का मिथिल ग्रुप आल्सो हैविंग द अर्थो एंड पैरा, बोथ दिस मिथिल ग्रुप जस्ट डायरेक्ट द सेम. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेंगी बट द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल नॉट ऑक्युपाई द दिस इन बिटवीन पोजीशन, बिकॉज ड्यू टू द मिथिल ग्रुप का क्या रहेगा, एक स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा और ये मिथिल ग्रुप का एक स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा. दैट्स व्हाई if it is undergo the bromination, chlorination, halogenation or any of the electrophilic aromatic substitution reaction, तो no electrophile occupy the in between position, ये group occupy नहीं करेगा due to the crowding effect, और this is also called as the steric hindrance effect. ये समझ में आ गया सभी? yes Yes. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि इस पे ना जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं या कोई ऐसा जो 5 मार्क्स का रहता है, इन दैट जस्ट गिवन द स्टार्टिंग रिएजेंट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, है ना. तो प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन अ लॉजिक, टोटली लॉजिक. ऐसा नहीं है कि जस्ट बेंजीन को ट्रीट किया हमने क्लोरीन और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, है ना. यहाँ पे जस्ट वी हैव टू अप्लाई सम लॉजिक, और मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल भी हुआ है हमारा, है ना. हुआ था ये एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल भी हुआ था, ये एग्जाम्पल भी हुआ था हमारा. ये नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, है ना. ड्रॉ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अ फिनॉल इज ट्रीटेड विद द
each of the reagent, है ना. फिनॉल तो पहला देखो क्या है. When a phenol is treated with a nitric acid and concentrated sulfuric acid, so what is the name of this reaction? Nitration. Nitration. So nitro group attacking to the phenol group on which position? Ortho and Orthopara. अर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना. और क्या होता है पिक्रिक एसिड? व्हाट इज द पिक्रिक एसिड? यस एनीवन? 2,4,6 nitrophenol. फिनॉल, है ना. तो व्हेन द रिएक्शन इज कैरीड आउट, देखो अभी ना, जस्ट राइट, जस्ट ट्राई द रिएक्शन. अब ट्राई करो क्या होता है. बिकॉज द फिनॉल इज एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर. Activator. In phenol, the hydroxyl group is an activator because oxygen atom having the two non-bonded pair of electron. Oxygen atom पे क्या रहता है? दो non-bonded pair of electron रहते हैं, है ना. So these two non-bonded pair of electron of the oxygen that delocalize on a benzene ring, that delocalize on a benzene ring. So the electron density on a benzene ring is increases, and it promote the electrophilic aromatic substitution reaction, because the rate of reaction of electrophilic aromatic substitution reaction is depending on a electron density. तो again the hydroxyl group release the electron, तो electron density जब बढ़ जाएंगी तो it promote the electrophilic aromatic substitution reaction, means the reaction can't stop on a one substitution. Means nitro group once the substituted of the hydrogen atom, तो क्या फॉर्म हो रहा है? वो नाइट्रोफिनॉल हो रहा है. बट क्या हो रहा है वहां पे? वो डबल फर्दर अंडरगो द नाइट्रेशन, तो रिएक्शन में भी प्रोड्यूस द पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड, है ना. अभी देखो फिनॉल चैप्टर हुआ है आप लोगों का. Yes, sir. तो कोई मुझे एक आंसर बोलेगा. फॉर दैट यू गॉट द 3 मार्क्स. आपका नंबर और आपका है ना क्या बोलते हैं उसको, रोल नंबर भी बोल देना मुझे. और ये क्वेश्चन है आपके लिए. विच वन इज द मोर एसिडिक, पिक्रिक एसिड और फिनॉल, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Sir, picric acid is more acidic than phenol. Why? क्योंकि उसमें तीन नाइट्रोजन ग्रुप्स है. Yes, correct. And what is the effect of nitro group? सर वो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं. Yes. एक one of the broad or layman thing you should note that when an electron withdrawing group attach with a phenol, just write down, when an electron withdrawing group, when electron withdrawing group attach with a phenol, the acidity of a phenol is increases. Acidity of a phenol is increases. क्या होता है पता है कि जैसा देखो अभी आपके ना स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये कि ना अर्थो नाइट्रो हो गया और अर्थो पैरा डायनाइट्रो हो गया और ये हो गया पिक्रिक एसिड. आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर? यस सर. यस सर. तो ये क्या है, ये सभी नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ बेंजीन रिंग क्या हो जाती है वहां पर? फिर डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अ बेंजीन रिंग इज डिक्रीजेस, बट द सेम इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू दिस ऑक्सीजन एटम, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड अप टू द थर्ड एटम. तो यहाँ पे क्या होता है? ये नाइट्रोजन एटम विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम, द सेम इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू दिस कार्बन एटम, और सेम इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू दिस oxygen atom. So what happened? The oxygen more forcefully withdraw the electron from the hydrogen atom, means this nitrogen group facilitate the loss of hydrogen atom. This nitro group, these 3 nitro group facilitate the loss of hydrogen atom of a phenol. So that's why the acidity is increases. समझ में आ रहा है? That's why the acidity is increases. समझ में आ गया आपको ये?
Yes. Yes. Again, और सेकंड पॉइंट नोट कर लो, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कौन कौन से रहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? अभी जिसने प्रीवियसली आंसर दिया वो बोलेंगे मुझे। Sir, alkyl groups. All the alkyl group like methyl, propyl, butyl, propyl, tertiary butyl, all are the electron releasing group. If such a releasing group attach with a phenol, so in that case the acidity increases or decreases? Decreases. Decreases. Acidity is decreases. What is the reason behind that? Sir, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं रिंग पे। ये क्या रहता है? When an electron releasing group, like just take the example of अब यहाँ पे हम ले लो, यहाँ पर 2-ethyl phenol, 2-ethyl phenol इसको अटैच है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द phenol oxygen atom, but parallelly ethyl group is also release the electron towards the phenol. तो जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है बेंजीन की, that is also come up from the ethyl group. The electron requirement of a benzene ring is also come up from the ethyl group. तो जो ability to withdraw the electron from the oxygen atom, तो वो ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है यहाँ पर। तो सेम इंडक्टिव इफेक्ट किधर ट्रांसफर हो रहा है? ये OH बॉन्ड में हो रहा है। तो दैट रिटार्ड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या हो रहा है इथिल ग्रुप का? ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या कर रहा है? वो हैम्परिंग कर रहा है। दैट रिटार्ड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई द एसिडिटी इज decreases. और acidity is directly related with how readily it lost the hydrogen atoms, means any group that facilitate the loss of hydrogen atom or any group that facilitate the loss of proton that promote the acidity, that facilitate the acidity, है ना? तो इसीलिए जो नाइट्रो ग्रुप रहेंगे इस पे, जितने समझो यहाँ पे पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं? उसको प्रमोट करते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसकी एसिडिटी क्या कर देते हैं? वो बढ़ा देते हैं। इसीलिए कभी हम कंपेयर करते हैं फिनॉल, पिक्रिक एसिड और पैरा इथिल फिनॉल, तो विच वन इज द मोर एसिडिक? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। फिर उसके बाद में कौन रहेगा? पैरा इथिल। नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? वी कंपेयर द पिक्रिक एसिड, फिनॉल एंड पैरा इथिल फिनॉल। जैसे अभी देखो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, और थर्ड स्ट्रक्चर ये है आपका। सर सबसे ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड होगा, फिर फिनॉल होगा, और फिर उसके बाद में इथाइल फिनॉल होगा। पैरा इथाइल फिनॉल। पैरा इथिल फिनॉल, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस, तो ये नोट कर लिया आपने। तो एग्जैक्टली जब अपोजिट आपका एनिलीन हुआ है, एनिलीन सॉरी एरोमेटिक अमाइंस हुआ आप लोगों का? यस सर। तो एरोमेटिक अमाइंस में ना एक ही एग्जांपल है एरोमेटिक अमाइंस का, कौन सा है वो? एनिलीन है एक्चुअली, है ना? एनिलीन ही है ना, एरोमेटिक अमाइंस मींस एनिलीन। तो एनिलीन को ये अपोजिट ये होगा, जस्ट एनिलीन इज एसिडिक और बेसिक? सर वीकली बेसिक, वीक बेस। वीकली बेसिक, वीक बेस, है ना? अभी जस्ट टेल मी, इफ वी कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, फिर उसके बाद में अर्थोक्लोरो एनिलीन, आप जो प्रीवियस जिसने आंसर दिया था ना वो मत बोलो मुझे, दूसरा कोई बोलो, ट्राई करो। ये सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लोरो एनिलीन, और थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम टर्शियरी ब्यूटील, पैरा टर्शियरी हाँ, अभी मुझे कौन बोलेगा? हन्नान अहमद है आप? हन्नान, हन्नान, हन्नान है क्या?
हन्नान है, हन्नान? फरीद वसी वासेफ है क्या? फरीद वासेफ? हाँ हन्नान बोलो। नहीं हन्नान नहीं। यस, कोई इंटरेस्टेड है बोलने में? ऋषिकेश बोर्डे, पृथ्वीराज, साद सिद्दीकी, प्रतीक बोरसे। यस, एनीवन? हेलो? यस सर। कौन बोल रहा है? बोलो। अमीन पृथ्वीराज सर, ना? अमीन। हाँ बोलो अमीन। ये तीनों जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, सब में पहला कौन सा है? एनिलीन है। दूसरा कौन सा है? अर्थोक्लोरो एनिलीन है। और तीसरा स्ट्रक्चर है पैरा टर्शियरी ब्यूटिल एनिलीन है। तो ये तीनों भी बेसिक है। सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोले तो ये अल्किल ग्रुप इसके ऊपर है, तो ये हाँ, मोर बेसिक अभी रहेगा, जैसे ये थर्ड स्ट्रक्चर नंबर। 1 है, ये 2 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है। तो इसका है ना, मुझे बेसिसिटी ऑर्डर दो। सब में ज्यादा बेसिक कौन है? बोलो। 3 है सर, 3 सर। यस 3। फिर उसके बाद में 1 सर, 1। 1 करेक्ट। फिर उसके बाद में गलत है। सेकंड। सेकंड। हाँ करेक्ट है सभी का ये, यस है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन ग्रुप क्या करता है? विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग इज डिक्रीजेस, तो इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर है ना, फिर वो क्या करता है, यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन एटम के, दैट इज फॉर द प्रोटोनेशन, है ना? बेसिसिटी इज डिपेंडिंग ऑन हाउ रेडिली इट लॉस द proton, but here what happened is this chlorine group that withdraw the electron density from the nitrogen atom by the inductive effect. तो electron density decrease होंगी तो protonation को भी क्या हो रहा है? वो decrease हो रहा है। That's why the basicity is decreases. But what happen in case of the para tertiary butyl aniline? What happened? This tertiary butyl group release the electron towards the benzene ring. Indirectly it release the electron by the inductive effect to the नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इज एज इट इज। तो यहाँ पे इट इंक्रीजेस द प्रोटोनेशन रेट, है ना? यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज होने की वजह से प्रोटोनेशन रेट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसलिए दिस वन इज द थर्ड ग्रुप, थर्ड एटम इज मोर basic compared to that of the primary first one and that of the second one. अभी एनिलीन में तो कोई है ही नहीं, तो वो उसका एज इट इज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इजीली अंडरगो द प्रोटोनेशन, है ना? समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया? ये दो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बट ये आपके कॉन्टेक्स्ट में आ गया था, तो मैंने एक रिवाइज कर लिया, रिवीजन ले लिया, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. मेरे पास में एक पीटर सैक बोलकर बुक है। आपके पास में मेरे ख्याल से आप लाइब्रेरी एक्सेस नहीं हो रहा है ना? आपको एक्सेस हो रहा है लाइब्रेरी? नो सर। तो मैं आपसे ना शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट भी लेक्चर को बोला था मैंने आपको, मैं इमीडिएटली अभी एक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का है ना पीडीएफ शेयर किया, वो भी देख लो। और मैं पीटर एंड सैक बोलकर एक बुक है, उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी स्पेशल चैप्टर है। विच वन? एसिडिटी Acidity or basicity. तो उसमें है ना कुछ बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं स्पेशली रिलेटेड विद फिनॉल एंड एनिलीन। तो वो एग्जाम्पल एक मर्तबा देख लो। बोले तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका सेमिस्टर में, तो वो क्वेश्चन आपको बाउंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत से एग्जाम्पल उसमें कवर किए हैं, अलग अलग ग्रुप अटैच करके, और उसमें कंपेयर करने का बोला, उसके आंसर भी दिया है। तो यू जस्ट गो थ्रू दैट बुक। I will share the PDF of that particular book on your WhatsApp group. उसको देख लो एक मर्तबा, है ना? अभी सेकंड देखो, ये बी रिएक्शन, ये क्या है? ये कौन सी रिएक्शन है? ये सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन, ये भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अर्थोपैरा पे हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? बोलो मुझे। D1। यस, D1 रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट
असाइलेशन है। Acylation. ये दिस वन G1 जी, जो G का रिएजेंट है ये कौन सा है? Chlorination. Chlorination. क्लोरीनेशन। और फिर ये कौन सा है? ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अच्छा। है। और ये Alkylation. ना Bromination. बेंजोनाइट्राइल हम इतना पूरा देखेंगे नहीं, इसका भी नेक्स्ट इज द बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल में क्या है? सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? ये नाइट्राइल ग्रुप है, दैट इज अ CN ग्रुप। CN ग्रुप इज एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर? यस 42 रोल नंबर। CN ग्रुप इज एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर? हाँ, रोल नंबर 42। सर डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर है, और जो डीएक्टिवेटर रहता है तो वो दैट डायरेक्ट द नेक्स्ट ग्रुप ऑन विच पोजीशन? मेटा पोजीशन। Definitely. So means whenever the benzonitrile is treated with this reagent A, B, C, D, E, तो definitely the coming group attacking to the meta position. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन कभी रहता है आपके सेशनल में, उसके बाद में सेमिस्टर में, तो इसको डायरेक्टली बस रिएक्शन नहीं लिखना है आपको। सब में पहले क्या लिखेंगे? आपको ए नंबर डाल के क्या लिखेंगे? दिस इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, इन दैट द ब्रोमिनेशन। फिर उसका रिएक्शन और रिएजेंट भी लिखना है आपको। फिर सेकंड लिखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन है, C1 इज द सल्फोनेशन, D1 इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, E1 इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो उसके नाम भी आपको मेंशन करना है ना? जितना आप है ना इन शॉर्ट डिटेल डिस्कस करेंगे उतने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोर मार्क्स, है ना? जैसा इसने आपने और लिख दिया कि CN ग्रुप इज द डीएक्टिवेटर्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस। दूसरा कोई नहीं भी लिखा तो चलेगा, जस्ट राइट ऑन द टू द पॉइंट। हाँ, तो दिस इज द नहीं, है ना? नाउ we to start the next bit, that is the structure and uses of the DDT, saccharin, BSC and chloramine. हम सेकंड बीट देख रहे हैं आपके चैप्टर का, दैट इज अ स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कंपाउंड लाइक DDT, saccharin, BSC, that is a benzene hexachloride, and fourth one is a chloramine. DDT क्या रहता है? DDT is a stand for dichloro diphenyl trichloroethane. Dichloro diphenyl trichloroethane. क्या यहाँ पर दो क्लोरीन ग्रुप है ना? एंड द मेन यूज ऑफ दिस कंपाउंड इज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड है इसका। IUPAC name of this compound is 1-chloro-4-2-2-2 trichloro 1 in bracket 4-chlorophenyl ethyl benzene. या इसका नाम क्या बोलेंगे? देखो हम यहाँ पर है ना, ये इथिल ग्रुप है, दिस इज द इथिल ग्रुप। दिस इथिल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन ग्रुप एंड फिनिल ग्रुप। तो कभी हमें ना C कम फर्स्ट, दैट इज द क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम 1-1-1 ट्राइक्लोरो। फिर इसके बाद में यहाँ पर दो फिनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20, और यहाँ पे पोजीशन ये 1 2 3 4, तो 20 यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 1 2 3 4 क्लोरोफिनिल इथेन, है ना? ये भी IUPAC नेम हो सकता है उसका, है ना? एंड मेनली द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड बाय नर्व पॉइजनिंग, द एक्ट बाय नर्व पॉइजनिंग टू द करस्पॉन्डिंग। Synthesis part consists of the when a benzene itself, the chlorobenzene is prepared from the chlorination. Chlorobenzene when treated with a chloral in presence of the acid, the two molecule of a chlorobenzene is treated with a chloral in presence of acid catalyst like the sulfuric acid, hydrochloric acid, or any other the acid, give the corresponding
DDT, that is a dichloro diphenyl trichloroethane, है ना? This is the common name of DDT. IUPAC name यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर. The next one is the chemical formula is C14H9Cl5, क्लोरीन है वहां पर. हाँ, molecular mass having the 354.48, having the melting point is 108.5 degrees Celsius and density is 0.99 gram per cubic centimeter. The physical property include the colorless, tasteless, and almost the odorless crystalline chemical compound with insoluble in water or partially or very insoluble in water, but soluble in a fats and oil, freely soluble in fats and oil. ये देखो जो ये है इसका ये जो टॉपिक है जैसा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसमें कुछ डिस्कस का नहीं पार्ट है एक्चुअली. इसमें बस हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड एंड उसका कुछ प्रॉपर्टी लिखना है आपको, है ना? यस सर. सुन रहे आप लोग? यस सर. वो एक मेरे ख्याल से देखो एक कोई मुझे व्हाट्सएप भी आया था कुछ एक पर्टिकुलरली एक कोई मीम था, मेरे ख्याल से मीम बनाया था उसने, क्या व्हाट इज द यूज ऑफ डोमपेरिडोन था या मेरे ख्याल से मिटक्लोप्रामाइड था मेरे ख्याल से. तो उसने पूछा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ मिटक्लोप्रामाइड, तो उसने बोला था यूजुअली क्या रहता है वो, आई थिंक वो उस पे लिखा भी था फार्माकोलॉजिकल वाइवा बोलकर. आपने देखा वो वीडियो? नो सर. व्हाट्सएप पे चल रहा है मेरे ख्याल से वो फार्मेसी के ग्रुप में. तो उसमें वो बोलता है नाउशिया, ओमिटिंग और साइड, दीज आर द साइड इफेक्ट. एक्चुअली वो दैट रेस्ट्रिक्ट द ओमिटिंग एंड नाउशिया. पर यूजुअली क्या रहता है कंसेप्ट हमारे दिल में कि कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग ले लो उसका बस एग्जांपल लिख लो दैट कॉजिंग द नाउशिया, ओमिटिंग एंड हेडेक. कभी कुछ नहीं याद आता है तो, है ना? सर वो इसने वीडियो डोमपेरिडोन. देखा है उसको ही मालूम है. तो यहाँ पर भी हमें ना फिजिकल प्रॉपर्टी एज इट इज लिखना है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड having soluble insoluble in water but soluble in fats and oils. Now the next important point, isomers and related compounds. This is the desired compound. This is a the next bit is the isomers. Though this is not directly related with your syllabus, but you should note that this is a very important topic or bit of the isomers and related compound. What happen whenever we are going to synthesize the desired product, whenever we are going to synthesize the desired product, for example we treat the chlorobenzene with a क्लोरल. हम जब क्या करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरल के साथ में, तो व्हाट वी थिंक, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग डीडीटी, दैट इज द डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना? हम क्या सोचते हैं कि कभी हमें ना जब है ना क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद क्लोरल, तो फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग दिस वन इज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट. ये सुन रहे हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, Though sir. this is not related Yes, with sir. your syllabus, but you should note that कभी आपको ये concept समझ में आती है तो आप अपनी खुद की इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं and you earn more than the crore of rupees.
है ना. This is called as the impurity profiling. This is called as the impurity profiling, or also called as the impurity synthesis. What happen whenever we are going to synthesize the any desired product? So though we are writing this product theoretically correct on the पेपर पे हम करेक्ट लिख लेंगे, बट व्हाट हैपन व्हेन वी कैरीड आउट द सेम रिएक्शन प्रैक्टिकली इन अ लैब, तो अलोंग विद द डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ different compound that having the same molecular formula, same structural formula, but having the different attachment. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको QSAR या मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इन दैट गिविंग द मिनिमम ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट. जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट रहता है तो वो क्या रहता है, दैट गिविंग द मिनिमम ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट एंड adverse effect. But what happened when we carried out the same reaction practically along with the desired product formation of a somewhat different product that having the same molecular formula and same structural formula. उसका molecular formula भी same रहता है और structural formula भी same रहता है, but different attachment of the atom with each other, but different attachment of the atom with each other, so that give the stereoisomer, that give the stereoisomers. तो आपके जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, that is अर्थो पैरा डीडीटी, पैरा पैरा डीडीटी और पैरा पैरा डीडीटी इम्प्यूरिटी. तो ये क्या रहता है, ये इम्प्यूरिटीज है. तो ये क्या है, सभी की क्या है, ये इम्प्यूरिटीज है. means we are not interested, we are interested on a fourth position, chlorine group on a fourth position. But when we carried out the chlorobenzene, treated with the chlorobenzene with the chloral, so along with this DDT, there is a formation of some isomer in that the chlorine group on a second position. और या यहाँ पे फिर क्या रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है कुछ रीजन के वजह से. या यहाँ पर क्या रहता है, इंस्टेड ऑफ द डाइक्लोरो यहाँ पे ट्राइक्लोरो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, डाइक्लोरो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो दीज आर द आइसोमेरिक फॉर्म हो रहे हैं इसके. या ये क्लोरीन ग्रुप है ना, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, इधर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है ना, है ना. तो दैट हैविंग द समवॉट डिफरेंट इफेक्ट. जो डीडीटी का इंसेक्टिसाइड मिलता है हमको, तो उसका वो इफेक्ट नहीं मिलता है, दैट गिविंग द समवॉट डिफरेंट इफेक्ट और हैविंग द लेस इफेक्ट, है ना. तो इफ द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द ड्रग दैट यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. So for example, we synthesize the paracetamol. So along with the paracetamol, formation of a somewhat different product that having the same structural and molecular formula, but different attachment. तो उस टाइम में that impurity may be having the NSAID, that is the antipyretic or analgesic activity, but also show the some adverse effect or side effect, है ना. तो इसीलिए अभी कोई भी प्रोडक्ट, जब नया प्रोडक्ट, whenever the industry or anyone that report the new product for the FDA, Food and Drug Administration, तो requirement of the FDA is that you should also report the minimum 15 to 25 impurities, है ना, that form along the formation of a paracetamol or whatever the new drug. समझ में आ रहा है आपको. जो इसीलिए क्या होता है, अब कोई भी न्यू ड्रग जब इंडस्ट्री रिपोर्ट करती है एफडीए को, तो एफडीए जस्ट कॉल द इम्प्यूरिटीज आल्सो, है ना. इसीलिए अभी अभी बहुत से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दैट सिंथेसाइज द डिफरेंट इम्प्यूरिटीज ऑन अ ongoing product, है ना. तो that charge the 1 gram or 2 gram or in 100 milligram for the lakhs and thousands rupees for that, है ना. तो ये एक अच्छा सेटअप है. बोले तो एक हमें ना इन लैब इन हाउस भी प्रिपेयर कर सकते हैं if we are perfect in a organic chemistry, है ना. नेक्स्ट यूज तो पता ही है इसका, इंसेक्टिसाइड बाय द नर्व पॉइजनिंग, है ना. अल्सो दिस डीडीटी प्रीवियसली इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सोल्जर फ्रॉम द टाइफाइड एंड मलेरिया कॉजिंग इंसेक्ट, है ना. जो मलेरिया की वजह से, मलेरिया या टाइफाइड होता है जो मॉस्किटोज की वजह से, तो उसको किल करने के भी लिए यूज करते थे प्रीवियसली, बट लेटर ऑन इट फाउंड दैट द कार्सिनोजेनिक, दैट्स व्हाई the developed country restrict the use of DDT, but still the developing country use the DDT as the
इंसेक्टिसाइड स्टिल इन इंडिया, जो इंडिया में बहुत से परसेंटेज में डीडीटी यूज होता है पंजाब में। तो इसी का रिजल्ट है कि पंजाब में जो कार्सिनोजेनिक या कैंसर पेशेंट है इंडिया में सब में ज्यादा किधर मिलते हैं हमको, क्या पंजाब में मिलते हैं, बिकॉज द एक्सेसिव यूज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड व्हाटएवर द फर्टिलाइजर्स। द नेक्स्ट कंपाउंड इज अ सैक्रिन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अ सैक्रिन है ना, ये तो वेल नोन और वेल कॉमन एग्जांपल फॉर ऑल द दैट इज द अदर नेम इज द बेंजोइक सल्फीमाइड है ना। सल्फीमाइड क्या रहता है, सैक्रिन का यूज क्या है? सर शुगर की जगह पे यूज करते हैं शायद। अल्टरनेटिव ऑफ आर्टिफिशियल शुगर है ना, दिस इज आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ना, जैसे यूज फॉर द इन चॉकलेट इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, या उसके बाद में दूसरे जो इंडस्ट्री में यहाँ पे सैक्रिन यूज करते हैं। बट अगेन द सेम ड्रॉबैक और एडवर्स और साइड इफेक्ट ऑफ द सैक्रिन इज द कार्सिनोजेनिक इन नेचर है ना। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ द सैक्रिन nowadays in some percentage like 1:99 or 10:80-90% में ना aspartame के साथ में ना saccharin still we use the in a pharmaceutical, but it reported that the saccharin also causes the cancer है ना। जैसे देखो जो बहुत से आज भी है ना जो फूड स्टॉल रहते हैं तो उसमें ना कॉमनली इन इंडिया दैट यूज द सैक्रिन है ना, ब्लैक में यूज सेल करते हैं, दैट कॉजेज द सैक्रिन है ना। द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो भी हमें ना इसको देख रहे हैं, बिकॉज दिस कम अंडर द डेरिवेटिव ऑफ अ बेंजीन। व्हाई दिस प्रोडक्ट वी आर डिस्कसिंग अंडर द हेडिंग ऑफ अ benzene and its derivative, because this is the derivative. This is not only the derivative of a benzene, there are the lot of near about 80 to 85% of the pharmaceutical ingredients are the derivative of a benzene, but out of that just the DDT, saccharin, उसके बाद में BHC, उसके बाद में क्लोरामाइन टी, ये कुछ एग्जांपल रखे हैं। ऑल दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अ बेंजीन। और ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम वो देख रहे हैं ना। हाउ द सैक्रिन इज प्रिपेयर्ड, द सल्फोनेशन ऑफ अ टोल्यूइन बाय द क्लोरोसल्फोनिक एसिड गिव द अर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरोनेशन कर रहे हैं हम सल्फोनिल क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में। क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में हम जब ट्रीट कर रहे हैं, सल्फोनेशन हो रहा है इसका टोल्यूइन का, तो दैट गिव द अर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। फिर इसको दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। हाउ वी विल सेपरेट दिस टू प्रोडक्ट फ्रॉम ईच अदर? यस, जैसा आपको डिजायर है, यू हैव टू प्रिपेयर बाय द डिस्टिलेशन। Yes, by the fractional distillation, not a simple distillation, by the fractional distillation, because they are the derivative of each other. अर्थो ये अर्थो isomers है और ये para isomers है, तो इसमें क्या रहता है, they are having there are very short difference of a melting point or boiling point. That's why we use the फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी हम इसको बात करेंगे आइसोमर्स की, तो ये कौन सा आइसोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या स्टीरियो आइसोमर्स है? हुआ है ना, लास्ट लेक्चर आपका फर्स्ट ईयर में हुआ होगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर्स है? हाँ, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या रहता है, देयर इज अ डिफरेंस इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस देयर इज अ डिफरेंस इन अ melting point and boiling point, so we can easily distillate by the fractional distillation. So later on the ortho substituted is undergo the amination when treated with the amine, formation of a corresponding amide substituted sulfonamide form होता है। फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, रिंग क्लोजिंग बाय द ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ में P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद में क्या मिल रहा है हमको, डायरेक्टली सल्फोनामाइड है ना। this is the aromatic in nature because it containing the benzene है ना। already we discussed what is the aromatic compound, the compound that containing the one or more structure of the benzene or its chemical property similar to that of the benzene is aromatic in nature है ना। स्ट्रक्चर क्या है इसका, the IUPAC name is 1,1-dioxo 1,2 benzene thiazole 3-on, chemical formula is C7H5NO3 sulfur, molecular mass is 183.18 है ना, और melting point is whatever the 228.8 to 229.7। ये थर्मली भी स्टेबल है ना,
हीट स्टेबल कंपाउंड है ये, दिस इज द हीट स्टेबल कंपाउंड कंपेयर टू दैट ऑफ द सुक्रोज, और इसका डेंसिटी है 0.828 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।